गाइस फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ सिविल सर्विसेज हम डिस्कस कर रहे थे और ये अपराइटनेस, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर ली है। यू कैन विजिट दैट लेक्चर इन द प्लेलिस्ट। चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में जाइए और ऑलरेडी 18-19 लेक्चर, आधा सिलेबस आपका कवर हो चुका है एथिक्स का पूरा, और रेस्ट ऑफ द सिलेबस भी आपके 10-15 दिन में इसमें कवर हो जाएगा। सो नाउ लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट इम्पार्शियलिटी, द वैल्यू ऑफ इम्पार्शियलिटी। देखो ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जाती है और स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछी जाती है, पर पूछेंगे ऐसे नहीं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पार्शियलिटी। आपसे पूछा जाएगा कि कब आपने क्राइसिस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी फेस किया, इस तरीके से यूपीएससी पूछेगा कि अपने लाइफ के एग्जांपल दीजिए जब आपने क्राइसिस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी फेस किया हो, जब आपने क्राइसिस ऑफ इम्पार्शियलिटी इसके बारे में क्राइसिस फेस किया हो। क्राइसिस मतलब कि आपसे मॉरल प्रिंसिपल्स के आधार पे आपसे उम्मीद की जाती थी कि आप इम्पार्शियल रहेंगे मामले में, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा क्राइसिस आ गया हो, आपके फैमिली, आपके फ्रेंड उस इशू में इन्वॉल्व हो, और आपने फिर डिसीजन किस तरीके से लिया उस इशू में, राइट? किस तरीके से आपने इम्पार्शियल डिसीजन लिया, इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछते हैं और आपको एग्जाम्पल जिसमें देने होते हैं हिस्टोरिकल एग्जाम्पल भी। सो व्हाट इज इम्पार्शियलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी इज ऑल्सो वेरी सिमिलर. Objectivity is also very similar. If you understand impartiality, objectivity is also very similar. What does impartiality mean? One second. What does impartiality mean? So impartiality means that it is a principle. It is a principle of justice. Of what? Of justice. It is a principle of justice means if you are adhering to impartiality, if you are giving up impartial decision, then you are giving justice to some person. लेकिन अगर आप कोई ऐसा डिसीजन ले रहे हो जो पार्शियलिटी को फॉलो करता है, मतलब आपने किसी एक आदमी के पक्ष में डिसीजन ले लिया हो, तो वो जस्टिस नहीं हुआ. इट मीन्स इन ऑर्डर टू बी जस्ट, you need to be impartial, and that's why all civil servants are expected to be impartial. यही अगर आपसे पूछा भी जाए कि what is the significance of impartiality in public administration, वो हम आगे स्टडी करेंगे, बट सिंपल सा प्रिंसिपल है, if you want to deliver justice, better justice, you need to be impartial. Right? So it is a principle of justice that holds that decisions should be based on objective criteria. It should be based on objective criteria. It should be based on facts. All your decisions should be based on facts. There should be no bias. There should be no prejudice. आपके दिमाग में पहले से कोई ऐसा नहीं होना चाहिए, preconceived notions नहीं होने चाहिए आपके दिमाग में. कईयों के होता है preconceived notion कि भैया हाँ वो आदमी आ रहा है, हाँ भैया मेरा पड़ोसी है, गलत तो इसी ने किया होगा. ये हुआ preconceived notion. इसको तो मैं बचपन से जानता हूँ, गलत तो इसी ने किया होगा. He is the culprit. This is your preconceived notion. If you want to be just on your part, never follow preconceived notion. That is the basic principle of impartiality. That's how you can maintain impartiality in your character. So what does impartiality means? And similarly, what does objectivity mean? Objectivity and impartiality both means that almost means, I mean they are 90% similar. Okay, impartiality is a broader term, objectivity is a specific term. Objectivity says whatever there are facts, your decision should be based on that thing only. I mean assess the facts and take the decision. The decisions that are taken impartially based on the facts, they are just a decision. They are decisions that follow the principle of justice. तो ऑब्जेक्टिविटी का ये मानना है, बट इम्पार्शियलिटी इज अ ब्रॉडर टर्म. इम्पार्शियलिटी इज अ ब्रॉडर टर्म. आई मीन it includes the psychological, it includes the social conditions as well. It includes other factors as well. So it is not just about facts, impartiality. Objectivity is basically about facts. Whatever facts are presented before you, you assess those facts and take the decision. ठीक है? So that is the main difference. Otherwise 90% they are same. So what does it mean? It means if you are taking decisions, your decision should be based on objective observations and should not be influenced by any bias or any preconceived notion. अब ये impartiality किसी के कैरेक्टर में आती कैसे है? आदमी में जो partiality आती है, जो
पार्शियलिटी आती है, जो बायस्डनेस आदमी में आती है, उसकी कॉजेज क्या है, कॉजेज पहचानना जरूरी है भैया। आपसे सिंपली क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड बायसनेस इन एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर अगर बायस हो रहा है उसके पीछे। तो अगर आपको कॉजेज पता है, अगर आपको पता है कि बीमारी ये है, तभी आप प्रेस्क्राइब कर पाओगे ना कि भैया हाँ ये बीमारी है, ये दवाई लो, ठीक हो जाओगे। बुखार है, तुमने जुकाम, तुमने सिर दर्द की दे दी, हाँ ठीक हो जाओगे, ले लो। पूछा ही नहीं कि हो क्या रहा है, दे दी दवाई, गैस्ट्रिक की दे दी, है इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है, इंटेस्टाइनल, तो वो उससे थोड़ी ना दिक्कत ठीक होगी। पहले जानो कि कॉजेज क्या है। कॉजेज यही है, पार्शियल बिहेवियर का कॉज क्या है, सबसे पहले प्री डिस्पोजिशन, मतलब आपके जो प्री कंसीव्ड नोशन है, जैसे मैंने बोला हाँ भैया ये पड़ोसी तो मेरा ही है, इसी ने गड़बड़ की होगी म्यूनिसिपैलिटी में, इसी ने कूड़े का पैसा नहीं दिया होगा, बड़ा चोर आदमी है यार ये तो, मुझे पता है। आप ऑफिसर हो, म्युनिसिपैलिटी ऑफिसर, है ना। तो अगर आप इस तरीके के प्री कंसीव्ड नोशन ले रहे हो तो आप इम्पार्शियल नहीं रह सकते, इससे बायसनेस आएगी। दूसरा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया है। क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? जब आपके पर्सनल इंटरेस्ट आपके ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में कॉन्फ्लिक्ट में आ जाए, ये दोनों इंटरेस्ट, तो आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज होगा। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट माने जब आप अपने पर्सनल इंटरेस्ट को ज्यादा प्रेफरेंस देने लग जाओ, जब आप किसी भी डिसीजन को लेने से पहले ये सोचोगे कि मुझे कहीं से मॉनेटरी गेन हो सकता है क्या, उस केस में आप बायसनेस के शिकार हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप तो देखेंगे कहां से मुझे पैसा मिल रहा है। सो दैट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इट कॉजेज बायसनेस। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिवॉर्ड्स, जैसे there was, I mean, it is subject to a broader debate, लेकिन मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन there was a severe criticism of a Supreme Court judge, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने बड़े बड़े डिसीजन दिए, और then he assumed the seat in राज्यसभा, seat of MP in राज्यसभा। इस वजह से जो उनका क्रिटिसिज्म है वो काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म उनका होने लगा। क्यों? क्योंकि लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू किया कि इससे कमिटेड जुडिशरी का राइज होगा, मतलब ऐसे जजेस का राइज हो सकता है जो कि एक्सपेक्टेशंस रखेंगे, जो सरकार के पक्ष में फैसला लेंगे, इस एक्सपेक्टेशंस में कि उन्हें भी ऐसा ही रिवॉर्ड मिलेगा, उनको भी एमपी की पोस्ट दी जाएगी। तो ऐसा क्रिटिसिज्म हो रहा था। हालांकि मैं पर्सनली आई डोंट एडहियर टू एनी सच काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म, लेकिन ये हो रहा था, ये एक फैक्ट है। तो इस तरीके से जब आप एक्सपेक्टेशंस रखोगे तो देयर आर पॉसिबिलिटी कि आप बायसनेस शो करो। नेक्स्ट, व्हेन एन इंडिविजुअल compromises with his integrity, ये इंटेग्रिटी का क्या कॉन्सेप्ट है और कैसे इससे बायसनेस आएगी, ये ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस हो चुका है। वी डोंट नीड टू डिस्कस इट मोर एनी मोर, सो विजिट द लास्ट लेक्चर, विजिट द प्लेलिस्ट, एंड वहां इलेबोरेटली ये सारी चीजें डिस्कस हुई है। सो नाउ फायदे क्या है भैया इम्पार्शियल होने के, अनबायस्ड होने के, ऑब्जेक्टिविटी के फायदे क्या है भैया? पहला फायदा क्या, एक साइकिल के तौर पे इसको समझते हैं। एक साइकिल के तौर पे इसको समझते हैं कि कौन किसको कैसे बेनिफिट करेगा। देखो इनबायसनेस किस आदमी में हो गया? अगर ऑर्गेनाइजेशन में हम किसी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अनबायस्ड रहे, इसका मतलब क्या है? हम एक ऐसे आदमी से वो एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं जो कि किसी बड़ी लीडरशिप पोजीशन में होगा। क्यों? क्योंकि अनबायस्ड तो उसी से एक्सपेक्ट किया जाएगा ना। मतलब आपके पियोन को आप बोलो कि हाँ अनबायस्ड रहा कर, भाई कहाँ रहेगा वो अनबायस्ड? उसने कोई डिसीजन लेना ही नहीं है, वो तो काम करने वाला है। हाँ, मैनेजर को आप कह सकते हो कि भैया अनबायस्ड रहा कर। क्यों? क्योंकि मैनेजर को डिसीजन लेना होता है, मैनेजर लीडरशिप रोल में है, और अनबायस्ड आदमी गुड लीडर बनेगा। मतलब जो अच्छा लीडर होगा वो अनबायस्ड होगा, राइट? अच्छा लीडर अगर कोई होगा तो वो अनबायस्ड होगा। इट मींस अच्छे लीडर की एक क्वालिटी है अनबायस्ड होना, इम्पार्शियल होना। तो जितनी अच्छी आप लीडरशिप स्किल्स अपने आप में ग्रो करोगे, ये एक साइकिल है, राइट? ये एक साइकिल है, एक दूसरे चीजों को ये मतलब एक दूसरे को इम्पार्शियलिटी और लीडरशिप की स्किल ये एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग बनाती है, अफर्म करती है। तो जितना अच्छी लीडरशिप स्किल किसी में होगी उतना इम्पार्शियल वो आदमी होगा।
देखो साइकिल के तौर पे समझो, उतना वो इम्पार्शियल होगा, जितना वो इम्पार्शियल होगा, जितना वो अनबायस्ड होगा, उतनी अच्छी ट्रस्ट ऑर्गेनाइजेशन में उसके उसके लिए बनेगी। ऑर्गेनाइजेशन विल ट्रस्ट हिम डेफिनेटली। नेक्स्ट नेक्स्ट फेज आता है कि अगर ट्रस्ट होगा, ट्रस्ट का कल्चर होगा ऑर्गेनाइजेशन में, अगर भरोसा करेंगे लीडर पे, तो ही वर्क कल्चर बेटर बन पाएगा। अदरवाइज तो लड़ते रहेंगे लोग क्रिटिसाइज करते रहेंगे, यार लीडर ही ठीक नहीं है हमारा। लीड बाय एग्जांपल, ऑलवेज लीड बाय एग्जांपल। give present yourself as an example before your team. When you are increasing trust of your organization by the means of being yourself as impartial person, okay, when the trust in or increases in the organization, it leads to better work culture, and better work culture will decrease the number of disputes, and it will lead to a better output, better organizational outcome. And then बेटर ऑर्गेनाइजेशनल अगर आउटकम होगी तो एक अच्छे लीडर के तौर पे आपको प्रेज किया जाएगा, आप और अच्छे निखर के आओगे, और अच्छे लीडर बनोगे, राइट। तो दिस इज द प्रोसेस, और ये प्रोसेस कंटिन्यू होता चलेगा। ये एक तरीके का वैसा ही वर्चुअस साइकिल है जैसा आपके इकोनॉमिक्स में आप पढ़ते हो। सो दैट इज ऑल अबाउट इम्पार्शियलिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी, राइट। सो आप कैसे इम्पार्शियल बनोगे, ऑब्जेक्टिविटी की स्किल कैसे इंक्रीज करोगे? डेफिनेटली जो बीमारियां हैं, जो हमने कॉजेस अभी आइडेंटिफाई किए, आदमी में जो बीमारियां हैं उनका ट्रीटमेंट कर दो, और इलाज आपके सामने, आदमी फ्रेश आपके सामने। वही बात, जो कॉजेस है उनको ट्रीट करो, अपनी पर्सनैलिटी में assess yourself and try to bring change in yourself, and then reduce these things in your personality. Definitely you will become a good impartial leader, right? So let us now talk about political neutrality. What does political neutrality mean? All these things are the part of your syllabus. You need to prepare everything, and you need to prepare everything, and you need to prepare your own examples for everything. You need to prepare an example that when there was a situation in your life that you had to take a decision, there were some people involved in the case, when they were having some kind of relationship with you, and you were having some kind of interest in that case, but still how did you handle to manage that situation? How did you handle to be strongly impartial person at that time? So you have to prepare the life examples as well, your own life examples as well, for that for any kind of question that can be asked from these things. Because question ऐसे ही पूछे जाते हैं, ऐसे ही पूछेंगे कि आप क्राइसिस ऑफ इम्पार्शियलिटी आपने कब फेस की, क्राइसिस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी आपने कब फेस की. सो यू हैव टू प्रिपेयर ऑन your own examples for that. So political neutrality, what does it mean? Political neutrality means neutrality of ideology. आप किसी भी आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं कर रहे हो, ब्लाइंडली फॉलो नहीं कर रहे हो. मतलब आइडियोलॉजी से सहमत होना एक बात है, उनको फॉलो करना दूसरी बात. फॉलो करना मीन्स यू आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन the conferences organized by a particular group supporting a particular ideology. It means if being a public administrator, if you are taking part in any such kind of ideology, any such kind of conference organized by a group supporting a particular ideology, the people who are against that ideology, they will never trust on you. I mean, if you are ideologically biased, it will definitely lead to the erosion of popular trust, not only on you as an officer, but it will lead to erosion of public trust on the government as a whole and on the position that you are holding. So that's why being politically neutral is very important. So ideologically you should be neutral. So there are 4-5 dimensions basically. You should be ideologically neutral. Next, you should not hold any पॉलिटिकल एफिलिएशंस. आपकी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं होनी चाहिए, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आपका संबंध नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट, एबिलिटी टू हैंडल पॉलिटिकल स्ट्रेस. इट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी.
It means if some leader is trying to exert his pressure on you, you should have the resistance, not resistance, basically you should have the resilience. कुछ भी बोला जाता है मुंह से है, तो यू शुड हैव द रेजिलियंस, आप में वो एबिलिटी होनी चाहिए कि आप हैंडल कर सको उस स्ट्रेस को हैंडल कर सको, एंड यू शुड इवन आफ्टर द a huge stress that can be exerted by a political person on you, even after such pressure, if you are taking unbiased decision, then you are politically neutral. Okay, so it is not only the neutrality of will, it is also a neutrality against force. So that is what political neutrality means. And next, you should not have any political aspirations. मतलब ऐसा नहीं कि भैया हाँ डीएम की पोस्ट से रिजाइन करेंगे बस एकदम फिर इलेक्शन लड़ेंगे, पार्टी से हम टिकट लेंगे और पार्टी के साथ अच्छे से बातचीत बना के रखो अभी तो टिकट विकेट अच्छे मिलेंगे. तो यू शुड नॉट हैव एनी काइंड ऑफ सच एस्पिरेशंस, सैड और अनसैड. You should never have any such kind of aspirations, expressed or unexpressed. You should never have any such kind of aspirations until you are in service. So that's these are some of the dimensions of political neutrality. Now what are the importance, what is the significance of political neutrality in public administration? First, पहले सिग्निफिकेंस सर कि भैया पार्टीज तो बड़ी टेम्परेरी टाइम के लिए रहती है, एडमिनिस्ट्रेटर को 60 साल तक काम करना पड़ता है, राइट. पार्टीज आती जाती रहेंगी, सरकारें दे विल कम एंड दे विल गो, न्यू पार्टीज विल कम एंड दे विल फॉर्म देयर गवर्नमेंट्स, बट यू हैव टू रिमेन in your post, in your position for a longer period of time. So you have to balance with other parties also. If you are not politically neutral, then definitely there is going to be a tension between the permanent executive and the political executive. So that is why neutrality is important in public administration. Next, it facilitates smooth transition of power. Definitely it facilitates smooth transition of power. Why? Because if public administrators are politically neutral, they will have, उनकी कोई एफिलिएशन ही नहीं होगी, उनकी इमोशनली कोई अटैचमेंट ही नहीं होगी किसी की पार्टी से जाने से. अगर आप पॉलिटिकली न्यूट्रल नहीं हो, आप चीफ सेक्रेटरी हो किसी स्टेट के, यू आर नॉट पॉलिटिकली न्यूट्रल, और आपका जो पिछला सीएम है जो आपका फेवरेट था वो रिजाइन कर गया, वो अब सीएम एग्जिस्ट नहीं करता. वाई? क्योंकि पार्टी इलेक्शन में हार गई. देन डेफिनेटली आप या तो आप रिजाइन कर दोगे या फिर आप हर्डल डालने की कोशिश करोगे नेक्स्ट सीएम के काम में. चीफ सेक्रेटरी तो आप हो, सिग्नेचर आपको करने हैं. सो being politically neutral is always important for facilitating the smooth transition of power. Next, continuity in policy. It is not policy. Why? Okay, continuity in policy. Why? Because the executive, the bureaucracy, they remain for a longer period of time. Bureaucracy is basically a continuous process. Okay, so इस वजह से ब्यूरोक्रेट्स की वजह से ही अलग अलग सरकारों की पॉलिसीज में कंटिन्यूटी बनी रहती है. अदरवाइज तो आती एक सरकार बोलती ये करना है, दूसरी बोलती ये करना है, तो कंटिन्यूटी कहाँ रहती. कंटिन्यूटी डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री का ट्रस्ट तभी इंक्रीज होगा अगर पॉलिसी में कंटिन्यूटी होगी. कंटिन्यूटी कौन फैसिलिटेट करता है? एक ऐसी अनबायस्ड आपकी एडमिनिस्ट्रेशन. एंड नेक्स्ट, पब्लिक ट्रस्ट. ये मैंने बात कर लिया था कि न्यूट्रलिटी अगर आप में नहीं होगी तो पब्लिक ट्रस्ट कैसे इरोड होगा. तो उस पब्लिक ट्रस्ट को बचाए रखने के लिए यू नीड टू बी पॉलिटिकली न्यूट्रल. सो नाउ एम्पैथी एंड कंपैशन, द वैल्यूज ऑफ, वन सेकेंड, द वैल्यूज ऑफ एम्पैथी एंड कंपैशन. First of all, I have many a time in the previous lectures, I have already explained the difference between empathy, sympathy and compassion. Again, एक बार फिर से, for the sake of revising this,
एक बार फिर से, सिंपैथी का मतलब होता है इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग द पेन ऑफ अदर्स, सिंपली अंडरस्टैंडिंग, और उसके बाद आप दो चार एकदम मीठे मीठे शब्द उसको बोल रहे हो, भैया कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, दैट इज योर सिंपैथी, राइट, दैट इज योर सिंपैथी, यू आर अंडरस्टैंडिंग, सिंपली अंडरस्टैंडिंग. Empathy means you are feeling that pain. I mean, you are keeping yourself in his position, and you are experiencing, you are feeling that pain by yourself. You are imagining कि मैं इसकी जगह होता तो क्या होता. That is empathy. Sympathy is basically understanding कि हाँ भैया आदमी बड़ा दर्द में है, दुख दर्द में. Empathy is you are feeling that pain. You are feeling his problems कि मैं इसकी जगह होता तो क्या होता. Compassion is कि भैया you are feeling his problems plus you want to resolve that issue. You want to resolve that problem. Okay, you want to solve his problem. So that is fundamental difference. Sympathy भाई ठीक है, अंडरस्टैंड कर रहे हैं. एम्पैथी कि यस हम फील भी कर रहे हैं, ठीक है, फीलिंग, आई एम फीलिंग हिज पेन, अगर मैं इसकी जगह होता तो क्या होता. कंपैशन, हाँ यार मैं इसकी जगह होता तो क्या होता, इसलिए मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए, दैट इज कंपैशन. ओके, कंपैशन reflects your helping nature. You are trying to help other persons. Why? Because you are able to understand his problem. Empathy is basically not trying to resolve his issue, but you are still feeling. Maybe you are not in position of helping him, so that's why you feel empathy for others. Okay. So example क्या है इसके? Example क्या है इसके empathy के कि एम्पैथी का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या रोल है. तो अभी ये एग्जांपल हम ये स्पेलिंग गलत है, ये रूसी मोदी है. ओके, ये हम अभी डिस्कस करेंगे एग्जांपल. पहले देख लेते हैं एम्पैथी का रोल क्या है भैया. एम्पैथी, सिंपैथी या कंपैशन का रोल क्या होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. जितने आप एम्पैथेटिक होंगे उतने इजीली आप दूसरों के इशू को अंडरस्टैंड कर पाएंगे. मतलब दो लोग कंप्लेंट लेके आपके सामने आएंगे, आप दोनों को अच्छे से समझ पाएंगे, हाँ भैया ये आदमी बड़े पीड़ित आदमी है और इतना इनको कष्ट है. If you are understanding their issues deeply, then only you can resolve, then only you can present a good resolution plan for that issue. If you are understanding that issue deeply. So if you have good understanding, it means you have good amount of empathy in yourself. If you have good empathy, you will be able to understand the issues of others. If you are understanding those issues, then you can present a good resolution for that issue. If you are able to present good resolution, if you are able to resolve the issues in a better way, then definitely public will, भाई पब्लिक आप पे ट्रस्ट करेगी, भैया ये है आदमी, ये झगड़े को रिजॉल्व कर देता है, इसके पास जाओ, उसे कहते हैं जज. ठीक है, मतलब डॉक्टर को एक एक अच्छा अगर सर्टिफिकेट किसी को देना हो तो भैया आपको गली मोहल्ले में जाके देखो, वो आदमी बढ़िया दवाई देता है, केमिस्ट की शॉप तो वही ठीक है, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती. तो ये सर्टिफिकेट पब्लिक देती है. सो दैट इज पब्लिक ट्रस्ट. इफ यू आर एबल टू रिजॉल्व द इश्यूज, देन इट विल इंक्रीज पब्लिक ट्रस्ट ऑन यू. इट मीन्स they believe in your leadership. It will enhance your leadership skill. जितने अच्छे आप लीडर होंगे उतनी अच्छी आपकी एम्पैथी होगी. So it is again a cycle. Always look at the things in a cyclic manner. One thing affirms the other thing. So इसका एग्जाम्पल क्या है अच्छे लीडर होने का? रूसी मोदी. देखो रूसी मोदी का एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है. I always try to give this example everywhere. रूसी मोदी, ये एग्जाम्पल मैंने शायद एक दो बार दे भी दिया हुआ है पिछले एक दो लेक्चर्स में. रूसी मोदी जो है टाटा स्टील के एमडी हुआ करते थे जमशेदपुर में. ठीक है, टाटा स्टील के. एक बार ही वाज डिलीवरिंग हिज लेक्चर दे रहे थे वो हॉल में, और फिर लेक्चर जब खत्म हुआ तब उन्होंने पूछा कि हाँ अगर आपको किसी को डाउट हो तो हाथ खड़ा कर लीजिए. एक मजदूर ने हाथ खड़ा किया, वहीं बैठा हुआ था लास्ट में. बोले कि सर मुझे क्वेश्चन आपसे कुछ नहीं है. बोले फिर क्या है? बोले एक रिक्वेस्ट है आपसे. बोले क्या? हमारे मजदूरों के टॉयलेट देखो एक बार सर, टॉयलेट के पास आओ. रूसी मोदी ने बोला ठीक है आ जाते हैं, क्या दिक्कत है. सर रूसी मोदी विजिटेड द टॉयलेट बड़ी बुरी हालत में थे, स्मेल मार रहे थे, जैसे होते हैं इंडिया के टॉयलेट, नॉर्मल है ना.
अब थोड़े सुधर गई हालत। पहले तो मतलब जैसे म्युनिसिपैलिटी वाले टॉयलेट होते थे ना, गांव के एकदम पंचायत घर वाले टॉयलेट, वैसी टॉयलेट की हालत थी, बिल्कुल एकदम ब्लॉकेज हुई हुई थी, है ना। जैसा जैसा आप इमेजिन कर सकते हैं कि जैसा जैसा उन्हें दिखा होगा वहां, है ना, वैसा वैसा उन्हें दिख गया वहां। एंड देन ही इमीडिएटली कॉल्ड द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स। ऋषि मोदी ने इमीडिएटली एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को कहा कि भाई ये ऐसा ऐसा क्यों है यहाँ पे, ये इतनी दिक्कत क्यों है। बोले सर हम डेफिनेटली इसको अभी रिजॉल्व कराएंगे, इन्होंने ये रिपोर्ट ही नहीं किया अभी तक। एग्जीक्यूटिव्स ने ऐसा बोला, जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स थे, इन्होंने मजदूरों ने रिपोर्ट ही नहीं किया। ऋषि मोदी ने पूछा एग्जीक्यूटिव से कितना टाइम लोगे इसको ठीक करने में। बोले सर एक आध महीना तो लग ही जाएगा, 5-7 टॉयलेट है, इतना तो रिपेयर में टाइम लग ही जाएगा। बोले डू इट नाउ, आज और इसी वक्त अभी इसको करो। बोले सर कैसे है, इम्पॉसिबल है, ब्लॉकेज हुई है, ये हुआ है, 1-2 महीना तो लगेगा। बोले नहीं, ठीक तो आज ही होगा। ऋषि मोदी ने एक ऑर्डर दिया, वहीं पे बगल में एग्जीक्यूटिव्स के टॉयलेट्स थे एकदम साफ सुथरे। ऋषि मोदी ने ऑर्डर दिया कि जो साइन बोर्ड है इसको शिफ्ट कर दो। जो एग्जीक्यूटिव्स का साइन बोर्ड है वो मजदूरों के टॉयलेट के सामने लगा दो, मजदूरों का साइन बोर्ड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के साइन बोर्ड के सामने लगा दो। मतलब साइन बोर्ड्स को इंटरचेंज कर दो। मतलब अब एग्जीक्यूटिव्स को मजदूरों का टॉयलेट यूज करना है और मजदूरों को एग्जीक्यूटिव का साफ सुथरा टॉयलेट यूज करना है। और ये व्यवस्था एक दिन के लिए नहीं, हमेशा रहेगी। और उन्होंने बोला ये साइन बोर्ड रोज चेंज होंगे, डेली चेंज होंगे। सर टॉयलेट उसी दिन ठीक हुए और हमेशा ठीक रहे। ये है लीडरशिप क्वालिटी, दैट इज योर एम्पैथी। ही वॉज वेरी एम्पैथेटिक अबाउट हिज वर्कर्स, इसीलिए हमेशा प्रेज किया जाता है। मतलब जो टाटा का जो कंपनी का वर्क कल्चर है वो इतना अच्छा है, मतलब भले ही वो उतने ज्यादा अगर सैलरी ना भी दे अपने वर्कर्स को, लेकिन वो सोशल सिक्योरिटी का बड़ा ख्याल रखते हैं। सो इसीलिए और इस तरीके के वर्क कल्चर को इवॉल्व करने में ऋषि मोदी का भी बड़ा एक योगदान था। तो ऐसे एग्जांपल्स आप कोट कर सकते हैं, अपनी लाइफ के भी ऐसे एग्जांपल आप बना सकते हैं। बाकी एक एग्जांपल सीरीज लाएंगे जिसमें मतलब जितने भी अच्छे अच्छे लीडर थे, है ना, आपके महात्मा गांधी, आपके राइट, लाल बहादुर शास्त्री जी, इनके लाइफ के जो बड़े बड़े अच्छे अच्छे किस्से थे जिनको आप एथिक्स में एज एन एग्जांपल कोट कर सकते हो, है ना। महात्मा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और आपके कलाम जी, इवन रामायण महाभारत, यहाँ से जो जो एग्जांपल आप उठा सकते हो, इस पे एक सीरीज लाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन टाइम जरूर लग सकता है। तो डेफिनेटली बने रहिए हमारे साथ। और ये आपकी जो भी आई थिंक यस वैल्यूज पार्ट कंप्लीट, और इस तरीके से आपका एथिक्स का अराउंड 65% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। सो बाकी भी अपलोड हो जाएगा, थोड़ा भरोसा बनाए रखें और शेयर कीजिए लेक्चर्स को, सपोर्ट भी कीजिए, एंड यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड थैंक यू सो मच। ऐसे ही एफर्ट्स चलते रहेंगे। आप भी अगर अच्छे लग रहे हैं लेक्चर तो थोड़ा सपोर्ट कीजिए, लाइक में क्लिक कीजिए और फिर कमेंट तो आखिरकार हर यूट्यूबर कहता ही है, हमारा भी अधिकार है, कमेंट कर दीजिएगा और बताइएगा कि कैसे इसमें और इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।